Muscular tissue. There are three types of muscular tissues: striated muscles, smooth muscles, cardiac muscles. Striated muscles, also called skeletal muscles. Why? Because they are attached with the limb bones. जो हाथों पैरों की लिम्ब्स की बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, उनके साथ जो जुड़ी मिलती हैं मसल्स, पेशियाँ, वो कहलाती हैं स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड क्यों कहते हैं भाई इनको? क्योंकि इनमें धारियाँ होती हैं, स्ट्राइशंस होती हैं, मतलब बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क। हाँ, ये हमें दिख रहे हैं, देखो ये जो काली काली पतली पतली हैं ये हैं डार्क बैंड्स, और ये जो वाइट वाइट एरिया ये है लाइट बैंड्स। Muscular tissue consists of muscle cells or muscle fibers. Because they are long, so they are called fibers. They are contractile cells which can contract and expand, contract and expand. And this is how they bring about movement and locomotion in organisms. Cytoplasm here in the muscular tissue, in the muscle cells, is not called cytoplasm, it is called sarcoplasm, remember. And can you see in one cell I have shown 2 nuclei? So that means 2 or more than 2 nuclei can be roaming about in the striated muscles. Hence, it shows a multinucleate situation. Smooth muscles. This is their shape. The spindle-shaped fiber is the smooth muscle fiber, consisting of a single nucleus and this liquid called sarcoplasm. And the plasma membrane is not called plasma lemma or plasma membrane, it is called sarcolemma. In all the muscular tissues, sarcolemma. And then, is it striated? Does it have bands? No, it does not have any bands. So it is non-striated. It is also called non-striated muscle fiber, muscle tissue. And where is it formed? It forms the walls of internal organs like blood vessels. Blood vessels के अंदर मिलेगा ये, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में मिलेगा जी, उनकी दीवारों में, और स्टमक में मिलेगा, इंटेस्टाइन में मिलेगा ये वाला टिश्यू। और इसका मतलब क्या ये मनुष्य के बस में होगा इसको कंट्रोल करना कि मैंने मसल को जब चाहा ट्विच कर दिया, उसको कंट्रैक्ट या एक्सपैंड कर दिया? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ये किस में आएंगी? ये आएंगी इनवॉलंटरी एक्शन वाली मसल्स। इनमें मनुष्य के बस में नहीं है इनको हैंडल करना, इनको कंट्रोल करना। लेकिन स्ट्राइटेड मसल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वश में है। आप खुद, जब मैं कहूँ आपको कि चलो तो आप चल सकते हो, हाँ। कोई आपको कहे कि रुक जाओ तो आप रुक सकते हो, हाँ। आपके बस में है रुकना, चलना, नीचे बेंड होना। तो ये सब किसके काम है? स्ट्राइटेड मसल्स कर रही हैं वो वाला आपके काम, तो वो आपके बस में है, वॉलंटरी एक्शन। थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर द कार्डियक मसल्स। और जैसा कि नाम बता रहा है, कार्डियक का मतलब कहाँ मिलेंगी भाई? ये हार्ट में। दे आर द हार्ट मसल्स। और आपको पता है कि हार्ट आपका 24 घंटे चलता रहता है। इसका मतलब कि ये 24 घंटे चलती हैं जी, नॉन स्टॉप, 24 आवर्स दे कीप ऑन मूविंग फॉर यू, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग, और बिल्कुल थकती नहीं है। नो फैटीग, नो टायर्डनेस दे शो। हाउ स्ट्रेंज, कमाल का एक्शन है इनका भाई। और हर सेल में इनके एक एक न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस सिचुएशन है। और ये सेल्स बनाए हुए ना, ये सेल्स हैं, ठीक है भाई। और क्या ये ब्रांच्ड है? हाँ, ये ब्रांच्ड है। ये दोनों बाकी वाली ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच्ड है। तो ये डिफरेंसेस हो गए इनके। और क्या ये स्ट्राइटेड है? हाँ, इसमें भी धारियाँ मिल जाएंगी। फोर्थ कैटेगरी ऑफ एनिमल टिश्यूज, द नर्वस टिश्यू or also called neural tissue. Here the cells are called neurons. They can be called cells or fibers because they are very long cells in our body, in the body of animals, so they are called fibers also. And this is one cell that I have drawn. This whole is one cell or neuron. And look at the dendrites which take the signal.
or impulses from the other cells, other neurons, and they pass it to the axon, this long filament. From here, the electrical wave, the message in the form of electrical wave passes to the nerve ending, and there will be another neuron here lying somewhere. So this is how there is a chain of neurons which form the nerve. कि हमारे में ब्रेन है, हमारे में स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं. ये सारा जो नर्वस सिस्टम है, it is all made of neurons. And then there are many special kind of neurons called neuroglia. These neuroglia form more than half of the volume of the neural tissue, nervous tissue, to protect and support the neurons. ये उनके आसपास मिलते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स न्यूरॉन्स के और उनको प्रोटेक्ट करते हैं. Now some important animals we will cover. First one being earthworm यानी फेरेटिमा या लुम्ब्रिकस. इंडिया में ये दोनों जीनस यानी जेनरा मिलते हैं और फेरेटिमा पोस्थ्यूमा भी बोल देते हैं इसको, मतलब जीनस और स्पीशीज फेरेटिमा पोस्थ्यूमा. फाइलम एनेलिडा है इसका. ये एक इनवर्टिब्रेट है यानी नॉन कॉर्डेट है. ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ज़मीन पे रहने वाला, और सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है जी, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है. बहुत सारी सेगमेंट्स आपको पता है, लाइनें लाइनें कट 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 मिलते हैं केंचुए में यानी अर्थवॉर्म में. ये इसकी पहचान है यानी मेटामियर्स. मोर देन 100 मेटामियर्स इन वन एनिमल कैन बी फाउंड. और ऊपर अगर बॉडी डॉर्सल वाली देखो लाइन, तो एक लाइन मिलती है जी यहाँ पे डॉर्सली, सेंटर में एक लाइन होती है, लॉन्गिट्यूडनली चलती है, जो एक्चुअली डॉर्सल ब्लड वेसल है. और नीचे यानी वेंट्रल एरिया में आपको मिलेंगे जेनिटल पोर्ट्स इस एनिमल में. ये एक हर्मेफ्रोडाइट है, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है यानी इसमें मेल, एक ही एनिमल में मेल भी मिलेगा और फीमेल भी. दोनों के गैमीट्स एक ही एनिमल में मिलेंगे, दोनों के ऑर्गन्स मिलेंगे. इसकी बरोइंग हैबिट होती है. ये सब हम क्या पढ़ रहे थे, जो अभी हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस एनिमल. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स मॉर्फोलॉजी. 14 to 16 सेगमेंट के बीच में, अगर आप 14 से लेकर 16 सेगमेंट गिनो तो उसके बीच में एक बैंड होगा, डार्क कलर का बैंड अलग से नज़र आएगा, जिसको बोलते हैं क्लाइटेलम. ये भी इसकी पहचान है, क्लाइटेलम बैंड. इसमें मेटामियर्स सेगमेंट्स क्लियरली दिख रही हैं बहुत सारी. क्लाइटेलम दिख रहा है बैंड, 14 से लेकर 16 सेगमेंट में मिलेगा. प्रोस्टोमियम दिख रहा है जो माउथ की एक कवरिंग है, कवर है ऑफ द माउथ, meant for digging the earth. It helps in digging the earth particles. Anus सबसे नीचे, तो complete alimentary canal है इसकी. Anatomy यानी study of internal structure, internal features of an organism, वो करते हैं. ये है जी अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो या एलिमेंट्री कैनाल बनाई गई है, कंप्लीट है, माउथ अप टू द एनस. और ये पूरी फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक छाई हुई होती है एलिमेंट्री कैनाल. सबसे पहले माउथ, और माउथ के बाद बकल कैविटी, फिर मस्कुलर फेरिंक्स, और फिर इसोफेगस, और 5th to 7th सेगमेंट में आपको इसोफेगस मिल जाएगा. मस्कुलर गिजर्ड मसल से बना हुआ, और इसका काम होता है इट ग्राइंड्स द सॉइल, तोड़ता है ये उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है सॉइल के पार्टिकल्स को और डिकेइंग लीव्स को, यानी फूड ऑफ द अर्थवर्म को तोड़ता है. ये गिजर्ड का काम है. ये मिलेगा आपको 8 से 9 सेगमेंट के बीच में मिलेगा. और फिर आ गया स्टमक, 9 to 14 सेगमेंट. देन देयर इज द इंटेस्टाइन आफ्टर दिस, नैरो ट्यूब,
15 से लेके सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक चलता है, ये इंटेस्टाइन चलती है। अ पेयर ऑफ सीकी, और वैसे इसको सीकम बोल सकते हैं, लेकिन ये सीकी है प्लूरल, और 26 सेगमेंट में पाए जाते हैं। किसकी? इंटेस्टाइन की। यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक फोल्ड दिखाई देता है, अंदर होता है, जो कि वॉल में होता है इंटेस्टाइन की। इट इज़ फोल्डेड एंड दिस फोल्ड इज कॉल्ड टिफ्लोसोल। इसका काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, मोर एब्जॉर्प्शन of food. To increase the surface area, this is there, the fold. Finally, the anus. Earthworm, केंचुआ, इसका circulatory system कैसा होता है? Closed. Not open but closed. What does this mean? That the blood is not found all in the open in the body cavity, in the coelom, but it is found confined in ब्लड वेसल्स। ऊपर पर देखो तो सेंटर में एक लाइन नज़र आती है, वो डॉर्सल ब्लड वेसल है जी, ये बनी हुई है। और ये छोटे छोटे हार्ट्स और वेंट्रल वेसल दिख रहा है। दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड हार्ट्स। देर आर ब्लड ग्लैंड्स फाउंड इन द 4th, 5th and 6th segment. Blood glands, what are these? Their function is to produce blood cells and hemoglobin. Hemoglobin is found dissolved in the plasma, that is the liquid part of the blood. और मैंने आपको बताया था नेफ्रीडिया होते क्या हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली कॉइल्ड होती है ये ट्यूब। एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है। ये सीलोम से गंध लाता है, ये सारी सीलोम है। यहाँ से गंध यानी वेस्ट ऑफ द बॉडी वो चलेगा और किस में घुसेगा जी? यहाँ इंटेस्टाइन पड़ी है, उसके अंदर ये पोर, ये छेद, इसको डाल देगा गंध को। किसको? नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो ये है किसकी शक्ल? नेफ्रीडियम की। एक नेफ्रीडियम की शक्ल है। ये 3 तरह के होते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया और फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। एक एक करके करते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया जैसे नाम बता रहा है, तो ये सेप्टा यानी वॉल ऑफ द सेगमेंट्स में मिलता है। ये सेगमेंट्स हैं देखो, और इसकी वॉल में मिल रहा है, तो सेप्टल नेफ्रीडिया हो गया। और 15वीं सेगमेंट, 15th सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक ये मिलते हैं बहुत सारे नेफ्रीडिया, और फाइनली इंटेस्टाइन में घुस जाता है, इनका एंट्री होती है और वेस्ट को ये बाहर फेंक पाते हैं। इसी तरह दूसरे हैं इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। इनको देखो, जैसा कि नाम बता रहा है, ये बॉडी वॉल में सिचुएटेड है, यानी कि जो बॉडी की वॉल है, इंटेग्यूमेंट है अर्थवॉर्म की, उसके अंदर ये मिलते हैं। फ़र्क हो गया ना थोड़ा सा, दोनों की लोकेशन में इसकी और इनकी फ़र्क है। और ये 3rd सेगमेंट से शुरू होके लास्ट सेगमेंट तक मिलेंगे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, और फाइनली ये ओपन करेंगे बॉडी सरफेस में और वेस्ट को बाहर फेंक देंगे। फेरेंजियल नेफ्रीडिया द 3rd काइंड कैटेगरी। 4th, 5th and 6th सेगमेंट में ये ऊपर ही कहीं मिल जाते हैं, फेरिंग्स के आसपास मिलते हैं, इसलिए फेरेंजियल नेफ्रीडिया। और ये किस रूप में मिलते हैं? 3 पेयर्स होते हैं, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए ये बना रहे हैं, और ये 3 पेयर्स के रूप में मिलते हैं। 3rd पेयर भी बना देती हूँ, ये रहा 3rd पेयर। तो 3 पेयर्स बनाएंगे आप। और ये क्या है भाई? फेरेंजियल नेफ्रीडिया 4th, 5th, 6th सेगमेंट में मिलते हैं, और फेरिंग्स के आसपास मिलते हैं। क्लस्टर्स यानी टफ्ट्स बना के झुंड के रूप में, ग्रुप के रूप में मिलते हैं। ये देख रहे हैं, झुंड झुंड, ग्रुप, टफ्ट्स। और अब इस सब का काम क्या नेफ्रीडिया का? एक तो है जी एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। दूसरा क्या होगा? एनी आइडिया? ऑस्मोरेगुलेशन। द नर्वस और न्यूरल सिस्टम of earthworm, nervous system,
This comprises of small brains, you can say ganglia, clusters of ganglia, and these are simply clusters of neurons. Can you see this ganglion, another ganglion? ये सब क्या है? गैंग्लिया प्लूरल, और स्मॉल ब्रेन्स बोल देते हैं इनको, एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, पेयर्ड नर्व कॉर्ड. और आपको ये ऊपर एक रिंग दिख रहा है, यहाँ पे फेरिंग्स है, बीच में क्या पड़ा हुआ है? फेरिंग्स. और फेरिंग्स को कवर कर रही है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा है, और यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया पड़े हुए हैं, आपको पता है यहाँ पे. तो इस प्रकार से जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो बाइफरकेट कर जाती है, दो में डिवाइड कर रही है, देखो हिस्सों में, और गोल रिंग बना रही है फेरिंग्स के आसपास. जैसे फेरिंग्स को जकड़ लिया इसने, एक गोला बना लिया है, कॉलर बना लिया है. एक ही एनिमल में टेस्टिस एंड ओवरी बनते हैं. और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है? मेल गैमीट्स यानी स्पर्म्स. ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी? फीमेल गैमीट्स यानी एग्स यानी ओवा. हाँ, तो पहले बात करते हैं इस वाले सिस्टम की. यहाँ आपको दिख रहा है 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होती हैं यहाँ, और 10th और 11th सेगमेंट में मिलती हैं ये बॉडी की, और इनसे पैदा हो रही है यह वासा डिफरेंशिया नाम की ट्यूब पाइप, और ये चलते चलते प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंची है और आगे भी जा रही है, देखिए वासा डिफरेंशिया. और इस तरह से फाइनली ये खुल रही है मेल जेनिटल पोर के द्वारा आउटसाइड को. सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या है? ये सेमिनल वेसिकल्स पड़ी हैं सर्टेन बॉडीज विच विल स्टोर द स्पर्म्स. ये इनका काम है, स्टोरिंग ऑफ स्पर्म्स फॉर कोपुलेशन यानी मेटिंग. सिंप्लीफाइड डायग्राम फॉर योर कन्वीनियंस. आप अगर ये चित्र बनाएं तो आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म. ये है सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म. क्या इस टेस्टिस का जो प्रोडक्ट है यानी मेल गैमीट और ओवरी वाला एक ही एनिमल का आपस में फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट बनाएंगे? नहीं, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाते ये एनिमल्स. जो ये वाला हर्मेफ्रोडाइट है ये जो एनिमल, पर 2 अलग अलग अर्थवॉर्म्स आपस में मेट करेंगे. फनल लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारे मिल जाते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे फनल शेप स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इसी टाइप के ऊपर भी. इनको स्पर्मेथीसी बोलते हैं और फनल शेप्ड होते हैं. इनका काम होता है बाहर से आए हुए स्पर्म्स को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना. अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ये देखिए ओवरीज हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज, और बहुत इजी सा डायग्राम है. एक फनल सी क्रिएट हो रही है, ये देख रहे हो फनल सा स्ट्रक्चर है. हाँ, तो जो ओवा बनेंगे इसमें एग्स, वो फनल में जाएंगे, फनल से फिर वो ओविडक्ट में जाएंगे, और फाइनली फीमेल जेनिटल पोर. ये फार्मर के मित्र हैं किसान के, क्योंकि ये बरोज क्रिएट करते हैं, छेद कर करके सॉइल में उसको पोरस बना देते हैं. आपको पता है जितनी पोरस सॉइल होगी, जितने उसमें पोर्स होंगे, उतना सॉइल के अंदर एयर ज़्यादा घुसेगी, उतना पानी भी ले पाएगी सॉइल. ठीक है, तो इस प्रकार से बरोइंग एनिमल्स हैं, जुताई कर देते हैं. ठीक है, जुताई के काम कर रहे हैं ये फार्मर का, तो बड़े मित्र हैं. और वर्मी कंपोस्ट बनती है, आपको पता है एक प्रकार की खाद, मैन्योर, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वो इनके द्वारा बनाई जाती है, लाल केंचुओं के द्वारा. और गोबर और लाल केंचुओं को मिला के थोड़ा पानी डाल डुल के उनको काफ़ी देर तक रखा जाता है, तो क्या बन जाती है? गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कुछ दिनों के बाद. और ये तो बिल्कुल सोना है जिसको कहते हैं. ये बहुत ही रिच मानी जाती है. इसको जब सॉइल में डालोगे तो बल्ले बल्ले, यानी कि बहुत फर्टाइल हो जाएगी सॉइल और बहुत अच्छे पौधे उगेंगे. ठीक है भाई, पैदावार बढ़ जाएगी. इसी प्रकार इनको बेट्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है. ये एक और फ़ायदा है मनुष्य के लिए इनका. किसमें? बेट की तरह गेम फिशिंग में. जब मछली पकड़नी हो और मछली है पानी में, आपने मछली को पकड़ना है, आपने डाला ये पकड़ने के लिए कांटा, लेकिन
इसमें नीचे कौन है? बेचारा अर्थवर्म, जिसको ये मछली खाएगी और फंस जाएगी। पेरिप्लनाटा अमेरिकाना, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम ऑफ कॉकरोच। और जीनस, स्पीशीज, क्लास इंसेक्टा होती है इसकी, इंसेक्ट है ये एक प्रकार का कीड़ा। फाइलम कौन सा है इसका? क्लास से ऊपर होता है, आपको पता है फाइलम, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के नीचे क्लास आएगी ये इंसेक्टा। और क्या ये कॉर्डेट्स में आता है? यही ये नहीं, कॉर्डेट्स में नहीं आता, ये भी नॉन कॉर्डेट है, इनवर्टिब्रेट है और नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब रात्रि को एक्टिव। ओमनीवोर है, यानी कि सब कुछ खा जाएगा। सीरियस पेस्ट्स हैं फॉर होम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज करते हैं ह्यूमंस की। दे आर द वेक्टर्स ऑफ डिजीज़ेस। एंटीनी, सेंसरी organs meant to touch things and know what is happening, what is there. 3 divisions of the body: head, thorax and abdomen. 2 wings, 2 pairs of wings and jointed legs. Jointed legs पहचान है insects की, आपको पता है। Anal cerci found only in the males. Exoskeleton made of chitin. Foregut, midgut और hindgut, 3 parts of alimentary canal. फोरगट की बात करते हैं। माउथ, स्टार्टिंग विद माउथ, रीचिंग अप टू नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद क्रॉप आ गई। ये फूड को स्टोर करता है, इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड टेम्पोरेरीली। उसके बाद आप देख रहे हैं आ गया गिजर्ड, एक और स्ट्रक्चर, एक और ऑर्गन जिसको प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। इसमें काइटिन के बने हुए टीथ होते हैं, काइटिनस टीथ, और उनका काम होता है फूड को ग्राइंड करना। 6 से 8 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, जिनको बोलते हैं हेपेटिक सीका। फोरगट और मिडगट के बीच में मिलते हैं, और इनका काम है डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। और उसके बाद आ गई मिडगट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये चली मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे आपको कौन नज़र आ रहा है? आपको दिखाई दे रहा है मालपाइन ट्यूब्यूल्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सारे 100 से लेके 150 तक हो सकते हैं, 100+। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं कॉकरोच के। कोई पूछे भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताओ कॉकरोच का, तो मालपाइन ट्यूब्यूल्स। और इनका काम क्या भाई? यहाँ पे अगर मान लो ये बॉडी आ रही है इस एनिमल की, इस इंसेक्ट की बॉडी है, बॉडी वॉल, तो ये क्या हुई? सीलोम। सीलोम से ये गंद उठाते हैं, लेते हैं बॉडी का वेस्ट, और किस में डाल दिया? इंटेस्टाइन में डाल दिया। तो उसके बाद है, बात करते हैं हाइंडगट की। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। Simplified diagram of the circulatory system of cockroach, and the blood vascular system यानी circulatory system is open type in cockroach, in the insects. Open का मतलब याद है कुछ? क्या होता है open system? यानी blood will be found in the body cavity, not in any tube-like structures, pipe-like structures called arteries, veins, capillaries. No blood vessels. सीधा ही ओपन में मिलेगा आपको ब्लड पड़ा हुआ हीमोसील में, यानी बॉडी कैविटी में, सीलोम में। और इसको सीलोम बोल देते हैं, स्पेस बोल देते हैं, साइनस बोल देते हैं, हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, ब्लड देखिए यहाँ पे पड़ा सीधा ही। और जो हैं ब्लड वेसल्स वो बड़ी पुअरली डेवलप्ड हैं अगर इसमें हैं। और क्यों भाई? क्योंकि उनमें छेद हैं, ऑस्टिया टाइप के छेद हैं, और वो कांटेक्ट में है किसके? सीलोम के में खुलती हैं, सीलोम में खुलते हैं वो, इसलिए ये प्रॉपर नहीं है ब्लड वेसल्स। और ब्लड को और क्या बोल देते हैं? हीमोलिम्फ। अनदर नेम फॉर ब्लड इज
हीमोलिम्फ। ये बना किसका होता है? इट इज़ मेड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा, यानी लिक्विड पार्ट कलरलेस होता है इसका, और हीमोसाइट्स होते हैं, उसमें कुछ सेल्स होते हैं पड़े हुए। ये देख रहे हैं आप ऑस्टिया यानी पोर्स। ये हार्ट है, ये सेंट्रली सिचुएटेड हार्ट है इसका, एनिमल का, कॉकरोच का। और ये छोटे छोटे चैम्बर दिखाए गए हैं, जगह जगह पे ये चैम्बर पड़े हुए हैं इसके हार्ट के, और इनमें छेद छेद हैं ऑस्टिया, जो कि किस में खुल रहे हैं? इस कैविटी में खुल रहे हैं। ब्लड घूमता रहता है फ्रॉम द साइनस थ्रू द ऑस्टिया बैक टू द साइनस यानी स्पेस। ये ट्रैकियल सिस्टम होता है, मेड ऑफ ट्रैकिया। और इसका चित्र बनाते हैं, बड़ा आसान है। ऐसे से बना लो, यहाँ एक गोला बना लो, यहाँ एक पाइप बना लो। ये पाइप आगे ब्रांच्ड हो गई जी, कई ब्रांचेस बन गई इसकी फर्दर ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। ऐसे ब्रांचिंग बना दो, और यहाँ पे क्या बना दो? ये टिश्यू पड़ा है, सेल्स पड़े हैं, कोई टिश्यू पड़ा है जहाँ तक ये ब्रांचेस जा रही हैं। यहाँ लिख दो सेल्स, ये टिश्यू भी लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये जो छेद छेद होता है बॉडी वॉल के अंदर मिलता है, ये एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं ये छेद। ये रही बॉडी वॉल कॉकरोच की, ठीक है। 10 पेयर ऑफ these holes is found in the body wall on the lateral side, साइड वाली बॉडी की साइड में मिलती हैं ये 10 pairs। इनको बोलते हैं इन छेदों को स्पाइरेकल्स। तो ये एक स्पाइरेकल बनाया मैंने। ये क्या है? ट्रैकिया, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रांच्ड हो गया, तो इसने क्या बना दिया? ट्रैकियोल्स बना दिए, ब्रांचिंग हो गई इसकी, हैं। और ये फाइनली सेल्स तक जा रहा है, अंदर आ रही है ऑक्सीजन यानी एयर अंदर घुस रही है और सेल्स को मिल रही है। सेल्स बदले में इसको क्या दे रहे हैं? CO2, और CO2 बाहर जा रही है। कॉकरोच एक डायोशियस एनिमल है, यानी इसमें मेल अलग होता है एनिमल, फीमेल अलग मिलती है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाईली सिंप्लीफाइड डायग्राम। आप जब भी ये डायग्राम बनाएं तो लिख दीजिए सिंप्लीफाइड डायग्राम, ताकि आसानी रहे, कोई गलतफहमी ना हो। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस दिख रहे हैं आपको, और 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में मिलती है टेस्टिस। जो इसका एब्डोमेन होता है ना, नीचे वाला पार्ट, उसमें सेगमेंटेड होता है, वो उसमें लाइनें लाइनें कट कट होते हैं, चैम्बर होते हैं। तो ये 4th से लेकर 6th सेगमेंट में टेस्टिस मिलती है पेयर। सेमिनल वेसिकल से होते हुए वास डेफरेंस जाती है इजैकुलेटरी डक्ट की तरफ, और फाइनली ये गोनोपोर दिख रहा है, मेल गोनोपोर यानी छेद, जो कि एनस से थोड़ा सा नीचे को मिलता है, वेंट्रल साइड पे सिचुएटेड होता है गोनोपोर, मेल छिद्र फॉर रिलीजिंग द स्पर्म्स। टेस्टिस स्पर्म्स बनाती है, आपको पता है। सेमिनल वेसिकल आपको पता है स्टोर करती है स्पर्म्स को टेम्परेरीली। और इस प्रकार से एक 6 से लेकर 7 सेगमेंट में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी मिल जाता है यहीं कहीं। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जो स्पर्म्स निकाले जाते हैं वो बंडल्स के रूप में, बंचेस के रूप में निकलते हैं, इकट्ठे आपस में चिपके हुए होते हैं, ग्लूड टुगेदर, और इनको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम of cockroach, an insect. 2 large ovaries that you can see here, the ovaries. They create a chain of ova, यानी eggs, पूरी लाइन, बहुत सारे ओवा। और ये दोनों, ये जो ओविडक्ट हैं दोनों के, ये 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, अपनी अपनी ओवरी के इनके अपने ओविडक्ट हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। They join together to form a common oviduct. ये कॉमन हो गया, इकट्ठे ज्वाइन हो गया,
इसको वेजाइना बोल देते हैं, और ये ओपन होता है एक चैम्बर में जिसको जेनिटल चैम्बर कहते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ कॉकरोचेज आर फाउंड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ootheca, ootheca यानी कैप्सूल्स, जिसमें मिलते हैं क्या, फर्टिलाइज्ड एग्स, और ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। आपने देखे होंगे जहाँ पे गंद वगैरह होता है वहाँ छोटे छोटे पाउचेस से मिल जाते हैं, कैप्सूल से, कॉकरोचों के। और फीमेल कितने प्रोड्यूस करती है? 9 to 10 ootheca प्रोड्यूस करती है, ईच कंटेनिंग, हर ootheca में 14 to 16 एग्स मिल जाते हैं। जो निम्स होती हैं, यानी छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो कॉकरोच का बाल, निम्फ, ये एडल्ट जैसी शक्ल होती है इनकी जी। और निम्फ मोल्टिंग के द्वारा ग्रो करते हैं, 13 टाइम ये मोल्ट करते हैं, मतलब जैसे वो केंचुली उतारता है ना सांप, ऐसे ये भी अपना ऊपर से कवर उतारते हैं 13 बार एडल्ट फॉर्म में पहुंचने के लिए। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच comprises of series of ganglia. Sometimes they are called small brains, and this is a cluster of neurons, ganglia, found in the thorax, in the head, everywhere throughout the body. 3 in the thorax, the ganglia are found. 6 in the abdomen, you will find the ganglia. And it is said that the head consists of lot of nervous system, and also the lower body, the belly, the ventral part of the body has the rest of the nervous system in it. That is why when the head is cut, we cut it. If the head is cut, the cockroach is known to live for at least 1 week. It will be live. ठीक है, the head will be live. And why so? Because these animals have open circulatory system, one thing. That means the blood is there in the hemocoel. Apart from that, they breathe by those holes, spiracles in the body wall. और हेड पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है, अगर ये कट हो जाती है हेड से, तो ये जिंदा रहेगी फॉर अ वीक, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है हेड पे। द सेंस ऑर्गन्स ऑफ दिस इंसेक्ट, दैट इज कॉकरोच, एंटीनी, आपको पता है कि यहाँ एंटीनी होते हैं ऐसे भांपने के लिए आसपास के वातावरण को। तो एंटीनी, कंपाउंड आइज, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, then the mouth parts and anal cerci, all these will form the sense organs of this insect. ये आपको बताया था। एक आँख इसकी बड़ी अजीब सी होती है, कंपाउंड आई कहलाती है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी आँखें होती हैं, उनको स्मॉल आइज नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं? ओमेटिडिया। ठीक है, प्लूरल है ओमेटिडिया, सिंगुलर है ओमेटिडियम। ओमेटिडिया, स्मॉल आइज, ये कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर बनाया पूरा। और ओमेटिडिया क्या करती हैं? ये छोटी छोटी आँखें, कोई इधर देखेगी, कोई इधर फोकस करेगी, कोई यहाँ, इमेजेस अपनी अपनी छोटी छोटी इमेजेस बना लेंगी, और फाइनली ये सारी इमेजेस को जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार पूरी पिक्चर नज़र आ जाएगी। भाई क्या है इसमें, हाथी है कि क्या है पड़ा हुआ है यहाँ सामने। इस प्रकार मोज़ेक विजन कहलाती है इंसेक्ट्स की। फ्रॉग, जीनस राना, राना टिग्रीना, द कॉमन इंडियन फ्रॉग, phylum Chordata, class Amphibia. These are cold-blooded animals. Another term for this is poikilotherms. So it is a poikilotherm. Mouth leads to buccal cavity, then the esophagus, and through the pharynx it leads to the esophagus, क्योंकि यहाँ पे एक फेरिंक्स भी आएगा छोटा सा। लिवर आपको पता है ग्लैंड है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा।
It will be stored in the gallbladder temporarily. Pancreas, leaf-like gland, और ये प्रोड्यूस करेगा pancreatic juice containing digestive enzymes. Rectum and finally the opening, not anus but called cloaca. Why? ये अजीब सी ओपनिंग है, इसमें 3 चीज़ें इसमें से निकल रही हैं. एक तो यूरिन इसी में से निकलेगा, पॉटी यानी फीसिस भी इसी में से निकलेगी, और गैमीट्स, मेल गैमीट फीमेल गैमीट वगैरह भी इसी में से निकलते हैं. हाईली सिंप्लीफाइड डायग्राम of the excretory system as well as the male reproductive system of frog, Rana tigrina. ये यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन हो रहा है? फाइनली रेक्टम में खुल रहा है, यानी एलिमेंट्री कनाल में घुस रहा है, और क्लोएका यानी कॉमन ओपनिंग के द्वारा यूरिन भी बाहर चला जाएगा फीसिस के साथ साथ ही. और इसी प्रकार अब ये टेस्टिस को देखिए, 2 टेस्टिस दिख रही हैं आपको, और इनके साथ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं बहुत सारे, ये हैं वासा एफ्रेंशिया, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये खुल रहे हैं फाइनली यूरेटर में, किडनी में से निकल के ये यूरेटर में चले जाते हैं और पास करेंगे अपना स्पर्म हेयर. स्पर्म्स जाते जाते क्लोएका के थ्रू ही स्पर्म भी बाहर फेंके जाएंगे पानी में. सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हार्ट कैसा है इसका? फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. impure and pure blood get mixed in this chamber, that is the ventricle.